Hello students, welcome back to your physics class. I hope you all are good. Yesterday we started with temperature and then we done an activity to confirm that hotness and coldness are relative terms, and after that we studied units for measuring temperature that are Kelvin, degrees Celsius and degree Fahrenheit. And corresponding to these units, there are different scales of temperature that are known as Kelvin scale, Celsius scale and Fahrenheit scale. As I have already told you, today we will study these scales in detail. So you can see this diagram. I have drawn these different scales, Kelvin scale, Celsius scale and Fahrenheit scale, and you can see this is a thermometer and three different scales are drawn on these thermometers. So the thermometer is same, but the difference is about the scales. This one is the Kelvin scale, this is Celsius scale and this is Fahrenheit scale. So we will see what is the difference between these three. As I have explained you yesterday that the Kelvin scale ranges from 273 Kelvin to 373 Kelvin. Celsius scale ranges from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, and Fahrenheit scale ranges from 32 degrees Fahrenheit to 212 degree Fahrenheit. So it means that it starts from, Kelvin scale starts from 273 Kelvin and it ends at 373 Kelvin. Or we can say that this one is known as the lower fixed point of Kelvin scale and this is known as the upper fixed point of the Kelvin scale. In each temperature scale there are two reference points. हर एक टेम्परेचर स्केल में दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं और उन रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट. तो केल्विन स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज 273 केल्विन और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज 373 केल्विन. एंड द डिफरेंस बिटवीन द upper fixed point and the lower fixed point will give the number of divisions of the scale. That means कि अगर हम 373 को 273 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपर फिक्स्ड पॉइंट को लोअर फिक्स्ड पॉइंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमें क्या देगा, नंबर ऑफ डिविजन देगा उस स्केल की. तो अगर हम 373 को 273 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 100. अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 373 में से 273 दैट विल बी इक्वल टू 100. दैट मीन्स कि ये जो स्केल है इसकी जो डिविजन है वो कितनी होंगी, 100 डिविजन. सो in this scale consists of 100 divisions of Kelvin scale. And this lower fixed point is also known as the freezing point of water. I have written over there freezing point of water. Freezing point and boiling point will occur at a particular temperature, but that temperature will be different according to the different scales. Temperature वही होगा, सेम रहेगा, पर जो स्केल होगा उस टेम्परेचर का वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. यहाँ पर जो केल्विन स्केल है वो फ्रीजिंग पॉइंट का है 273 केल्विन और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है दैट इज 373 केल्विन. एंड अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें दैट इज 298 केल्विन एंड बॉडी टेम्परेचर इज 310 केल्विन. एंड अकॉर्डिंगली ऑन द सेल्सियस स्केल the upper fixed point is 100 degrees Celsius and the lower fixed point is 0 degrees Celsius. And if we subtract these two from each other, 100 minus 0, then we will get the 100 divisions on this scale. That means the divisions on both these scales are same. यहाँ पर भी 100 divisions है और इसकी भी जो है divisions कितनी होंगी, 100 divisions. 100 में से 0 का subtract किया तो 100 divisions ही आ जाएंगे हमारे पास. और जो यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. अब आप देख सकते हैं कि ये जो करेस्पॉन्ड करेंगे ये सेम टेम्परेचर को करेस्पॉन्ड करेंगे, बट जो स्केल के डिफरेंस की वजह से इनकी जो रीडिंग्स है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वो डिफरेंट होंगी. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस स्केल में है 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर in degree Celsius is 100 degrees Celsius. And if we talk about room temperature that is 25 degrees Celsius, body temperature is 37 degree Celsius. And similarly if we talk about Fahrenheit scale, here is the upper fixed point is 212 degree Fahrenheit and the lower fixed point is 332 degree Fahrenheit. And if we subtract the upper fixed point, the lower fixed point from the upper fixed point, then we will get 180, and it means there are 180 divisions on the Fahrenheit scale. So I hope you understood that how we are
writing the number of divisions on these scales. So there are 180 divisions. As you have seen that there are 100 divisions on both of these scales, Kelvin and Celsius scale, but in Fahrenheit scale there are 180 divisions. 180 divisions का मतलब क्या है? ये जो लाइन्स हम लगा रहे हैं, ये जो मार्किंग्स है जो लगी होती हैं थर्मोमीटर पे या किसी और भी स्केल पे, जैसे हम सेंटीमीटर स्केल और मीटर स्केल देखते हैं, तो हर एक पे ये मार्किंग्स होती हैं, इनको डिविजन्स बोलते हैं। और यहाँ पर इसमें जो मार्किंग्स होंगी वो 100 होंगी, इसमें भी 100 होंगी, पर इसमें जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी और वो 180 होंगी। तो इस वजह से ये एक दूसरे के साथ थोड़ा सा डिफरेंस में है। और सिमिलरली इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है दैट इज 32 डिग्री फारेनहाइट, मतलब जो 0 डिग्री से लेते हैं हम सेल्सियस स्केल में या 273 हम केल्विन में लेते हैं, वो हमारे पास होगा 32 डिग्री फारेनहाइट, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सिमिलरली रूम टेम्परेचर होगा 77 डिग्री फारेनहाइट और जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 98.6 डिग्री फारेनहाइट, दैट इज वेरी कॉमन, दैट इज वेरी नोन टू यू। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फारेनहाइट। सो आई होप you understood this topic. So these are the basic things about the different scales that you should know, that what is the difference between these scales. So I have written these points in the paras also. The temperature of a given object will give different readings on the different scales, but all these readings will indicate the same temperature. चाहे जो टेम्परेचर है किसी ऑब्जेक्ट का वो इन स्केल डिफरेंट स्केल पे डिफरेंट रीडिंग देगा, पर जो एक्चुअल टेम्परेचर होगा, मतलब जो टेम्परेचर होगा वो तो सेम ही होगा। टेम्परेचर विल बी सेम बट द रीडिंग्स विल बी डिफरेंट ऑन द डिफरेंट स्केल्स। अगर हम एक सेम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसका टेम्परेचर, मान लीजिए उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस मैंने सेल्सियस स्केल में कहा, 100 मीन्स इन सेल्सियस स्केल, पर अगर हम उसी का अगर हम बात करें हॉटनेस, उसी की हॉटनेस अगर हम फारेनहाइट और केल्विन स्केल में देखें, तो केल्विन स्केल में उसकी हॉटनेस हम मेजर करेंगे, हम बोलेंगे कि वो 373 केल्विन है उसका टेम्परेचर और इसमें 212 डिग्री फारेनहाइट है। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर तो वो सेम होगा उस ऑब्जेक्ट का, बट द रीडिंग्स विल बी डिफरेंट इन द 3 स्केल्स। सो जैसे कि हम लेंथ में बात करते हैं, जैसे 2 मीटर और 200 सेंटीमीटर है, वो बात तो सेम ही है, लेंथ तो सेम ही है, 2 मीटर कह लीजिए चाहे उसे 200 सेंटीमीटर कह लीजिए, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो दिस इज द थिंग। फॉर एग्जाम्पल देर इज अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, लाइक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अकर्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑल्दो रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली बाय 3 स्केल्स। वही बात है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो एक ही रहेगा, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट है चाहे फ्रीजिंग पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट पे एक ही टेम्परेचर पे जो वाटर है बॉयल होगा या फिर फ्रीज होगा, बट जो रीडिंग्स होगी उनके डिफरेंट स्केल्स पे वो क्या डिफर कर सकती हैं। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। इन ईच टेम्परेचर स्केल 2 रेफरेंस पॉइंट्स आर टेकन, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जिसको हम अपर फिक्स्ड पॉइंट लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज नोन एज अपर फिक्स्ड पॉइंट। नेक्स्ट इज conversion of units of temperature. This last line also indicate that number of divisions that we can find by subtracting the upper fixed point from the by subtracting the lower fixed point from the upper fixed point. So the difference will give us the smaller number of divisions that are divided uniformly. Uniformly means क्या है कि equal space के साथ वो जो lines है वो divided है। Next है हमारे पास conversion of units of temperature. How we can convert temperature इन फ्रॉम 1 यूनिट टू अनदर यूनिट। जैसे कि हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर हम इसको फारेनहाइट में चेंज करना है या फिर फारेनहाइट वाले टेम्परेचर को हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो हम इस रिलेशन की हेल्प से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस रिलेशन में क्या है कि डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, दैट इज विल बी इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री फारेनहाइट माइनस 32। मीन्स की डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट में ये रिलेशन है। अगर हमें डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में या डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो हम ये वाला रिलेशन अडॉप्ट करेंगे और इसमें हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट यूनिट की रीडिंग फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलर तो इस फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये तो है वैल्यू डिग्री सेल्सियस की, अगर हमें डिग्री फारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है और अगर हम इसे
कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो हम क्या करेंगे, इसको रीडिंग इसकी यहाँ पर पुट कर देंगे और ये सारा सोल्व करके हमारे पास डिग्री सेल्सियस में इसका आंसर आ जाएगा। और सिमिलरली अगर हमें उसकी वैल्यू डिग्री फारेनहीट में निकालनी है तो ये जो 32 है इस साइड जाके प्लस हो जाएगा और ये जो 9/5 है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले 9/5 मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये 32 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा अगर हमें डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहीट में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली देयर इज अ रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस टेम्परेचर स्केल्स। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब क्या है कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया टेम्परेचर और उसको केल्विन में चेंज करना है तो हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, या फिर इसी रिलेशन से हम ये वाला रिलेशन बना सकते हैं। इस 273 को हम ट्रांसपोज कर देंगे दूसरी साइड। ट्रांसपोज आपको पता है, ट्रांसपोजिशन इन मैथमेटिक्स यू हैव डन, कि अगर हम इक्वेलिटी की दूसरी साइड ट्रांसपोज करें देन this plus sign will become minus and you will get the value of degree Celsius that will be equal to K minus 273. So in this way we can convert one unit of temperature into other unit. Next is thermometer. Thermometer you all know. I hope you all have seen thermometer. Thermometer is a device that is used to measure temperature of a body. अभी जब आपको फीवर होता है, when you got fever, then your mother will use thermometer to measure your body temperature. So this is a device which is used to measure the temperature of a body. किसी भी body का हम temperature measure कर सकते हैं by using thermometers. And thermometers are of various types. It depends on the usage that which type of object we have to measure temperature. किस object का हमें temperature measure करना है उसके accordingly different thermometers होते हैं. That we will discuss later on. Firstly we will see the construction of thermometer. The thermometer consists of a long cylindrical glass tube. Cylindrical glass tube है इस तरह की, ऐसे राउंड सी यहाँ पर, ये ग्लास ट्यूब है बाहर वाली. It consists of a long glass tube of narrow diameter. Narrow diameter मतलब इसका जो diameter है ये बहुत ही short है, बहुत ही तंग है, narrow है. Over which markings are made. हाँ जी, इसके ऊपर जो markings है वो बनाई गई हैं. ये वाली जो मैंने आपको बोला था ये scale है. And corresponding to different scales that can be in degrees केल्विन और फारेनहीट अकॉर्डिंगली. ये आपको बताइए कि ये जो मार्किंग्स हैं डिफरेंट स्केल्स के अकॉर्डिंग डिग्री सेल्सियस या केल्विन या फिर डिग्री फारेनहीट में हो सकती हैं. उसके बाद इसके साथ इसके नीचे यहाँ पर एक बल्ब होता है. हियर इज अ बल्ब एट वन एंड एंड देयर इज अनदर ट्यूब ऑल्सो दैट इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब. ये जो इसके अंदर, ये तो बाहर वाली ट्यूब है और जो इसके अंदर वाली ट्यूब है इसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब. कैपिलरी का मतलब होता है कि द ट्यूब विच इज ऑफ वेरी फाइन बोर. फाइन बोर मतलब जिसका रेडियस बहुत ही कम होता है, जो बहुत ही बारीक होती है, लाइक अ थिन हेयर. तो ये ट्यूब होती है, आपने देखी होगी शायद, जिसमें आपको ब्लैक कलर का या शाइनिंग कलर का लिक्विड दिखाई देता है. लिक्विड वो जो होता है वो मरकरी हो सकता है या फिर अल्कोहल हो सकता है. मतलब ये जो क्या है कि ये बाहर वाली ट्यूब है ग्लास ट्यूब, इसको हम बोलते हैं स्टेम, ठीक है. और इस पे जो मार्किंग्स की होती हैं उसको हम बोलते हैं मेन स्केल. और इसकी जो अंदर वाली ट्यूब है, ये जो बारीक सी ट्यूब है ये वाली, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब. कैपिलरी, CAPILLARY, कैपिलरी ट्यूब. सो ये जो है कैपिलरी ट्यूब है एंड इन दिस कैपिलरी ट्यूब अ लिक्विड इज फिल्ड. और ये जो है लिक्विड का लेवल है, लिक्विड कॉलम है, मतलब यहाँ तक उसका हाइट है, वैसे हमने शो कर दिया. और ये जो लिक्विड है वो कोई भी लिक्विड हो सकता है, हम मरकरी या फिर अल्कोहल यूज कर सकते हैं. आपने देखा ही होगा अपने घरों के थर्मोमीटर में, जब भी ब्रेक हो जाता है थर्मोमीटर तो उसमें से ये जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाता है और मरकरी या फिर ये अल्कोहल फिल होता है इसमें. एंड दिस लिक्विड इज ऑल्सो नोन एज थर्मोमेट्रिक फ्लूइड एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्मोमीटर. नाउ वी विल learn about the principle of thermometer, that how thermometer works, कि थर्मोमीटर किस तरह से काम करता है. तो जो थर्मोमीटर है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स ऑन हीटिंग. You know that when we heat an object then it will expand. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है. एक्सपैंड मतलब कि वो बढ़ता है, अपनी शेप में अपने साइज में वो बढ़ जाता है. तो इसी तरह से जब हम लिक्विड्स को हीट करते हैं तो वो भी एक्सपैंड करते हैं. तो जो थर्मोमीटर है इट सिंपली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स ऑन हीटिंग. मतलब हम जब लिक्विड्स को हीट करते हैं देन दे विल एक्सपैंड. एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते. एक होती है एक्सपेंशन और एक होती है कॉन्ट्रैक्शन. जब
हीट करते हैं तो एक्सपैंड होती हैं ऑब्जेक्ट्स, और जब हम उनको कूल करते हैं तो वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ जाते हैं. सो हाउ इट वर्क्स, व्हेन वी इंसर्ट बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर into the body whose temperature is to be measured, the heat energy of the body causes the fluid in the thermometer to expand and move up in the tube. जब भी हम थर्मोमीटर के बल्ब को किसी बॉडी के अंदर एक्सपैंड करते हैं, जिस भी बॉडी का हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो उस बॉडी के अंदर जो हीट एनर्जी होगी, अगर वो ऑब्जेक्ट हॉट होगा तब हम इसकी बात करें, तो जब वो बल्ब हम उसके अंदर डालेंगे और तो जो उसकी बॉडी के अंदर हीट एनर्जी होगी वो क्या करेगी, इस थर्मोमीटर के अंदर ये जो फ्लूइड होगा इसको क्या करेगी, इसकी वजह से ये फ्लूइड क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा. दैट मीन्स द हॉट ऑब्जेक्ट विल हैव हीट एनर्जी एंड ड्यू टू दैट हीट एनर्जी द लिक्विड इन द बल्ब विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग. वो एक्सपैंड करेगा, ऐसे राइज कर जाएगा, ठीक है. एंड द लिक्विड विल मूव अप इन द ट्यूब, इसमें मूव कर जाएगा. सो बाय नोटिंग डाउन द लेवल ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द स्केल, हाँ जी, जिस लेवल तक वो जाएगा, मान लीजिए इस लेवल तक चला गया, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग ये जो रीडिंग है स्केल से नोट कर लेंगे कि कितनी रीडिंग है, एंड वी विल गेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन डिग्रीज और इन केल्विन और इन सेल्सियस स्केल, जो भी यहाँ पर स्केल ड्रॉ किया होगा. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द थर्मोमीटर. और अगर मान लीजिए अगर हम किसी कोल्ड बॉडी का हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो वैसे ही हम करेंगे, उस थर्मोमीटर को कि बल्ब को उस बॉडी के अंदर डाल देंगे और वी विल, दैट मीन्स वी विल इंसर्ट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इनटू द कोल्ड बॉडी whose temperature is to be measured, and the coolness of the body will cause the fluid in this tube टू कॉन्ट्रैक्ट. मतलब जो इसकी ठंडक होगी उसकी वजह से ये जो लिक्विड कॉलम है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन इट विल मूव डाउन, ये डाउन मूव करेगा, एंड करेस्पॉन्डिंग टू द level of the fluid from this scale we will get the temperature of the body. So in this way thermometer works. Next is there are types of thermometer. Thermometers can be of various types. That can be laboratory thermometer, a clinical thermometer, or nowadays doctors use digital thermometers also. So we will see these thermometers one by one. First is the laboratory thermometer. Laboratory thermometer is used in labs and it is used to measure temperatures of various objects. The construction of this laboratory thermometer is same as that of the simple thermometer. I have explained that it consists of two glass tubes, one placed in the other. ये दो ग्लास ट्यूब्स का बना होता है, एक बाहर वाली जिसको हम स्टेम बोलते हैं और एक अंदर होती है जिसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं. इनर ट्यूब इज कैपिलरी ट्यूब दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू, ऑल्सो नोन एज बोर, इसको हम बोर भी बोल देते हैं. और जो अपर एंड है इस कैपिलरी ट्यूब का या इस बोर का, दैट इज कनेक्टेड विद दैट इज सील्ड, वो बंद है. एंड द लोअर एंड इज कनेक्टेड टू अ बल्ब, वो बल्ब के साथ कनेक्टेड है, विच इज फिल्ड विद मर्करी और अल्कोहल. मर्करी के साथ भी फिल कर सकते हैं, अल्कोहल के साथ भी. एंड द आउटर ट्यूब इज कॉल्ड द स्टेम. आउटर ट्यूब है जो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम. ये भी मैंने आपको बता दिया. एंड जो इसकी रेंज होती है इस थर्मोमीटर की, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, आप याद रखना, ये दिस क्वेश्चन कैन कम, दैट द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. हर थर्मोमीटर की अपनी अपनी रेंज होती है. लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स की यूजुअली जो रेंज होती है दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. नाउ हाउ वी कैन रीड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर correctly, or how we can get the temperature measurement of the temperature using a laboratory thermometer. तो किस तरह से हम करेक्ट रीडिंग ले सकते हैं, इसके लिए प्रिकॉशंस है. फर्स्ट क्या है कि जो थर्मोमीटर है उसको हमें सीधा रखना चाहिए, अपराइट, लाइक दिस, लाइक अ पेन, दिस पेन, एंड इट शुड नॉट बी टिल्टेड. इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना थर्मोमीटर को. सेकेंड इज द मर्करी बल्ब इज प्रॉपरली डिप्ड इनटू द सब्सटेंस. जो मर्करी बल्ब है वो प्रॉपरली डिप होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि उसका जो पार्ट ऐसे टेढ़े होके वो कुछ बाहर हो जाए. प्रॉपरली अच्छी तरह से कंप्लीटली उसकी सराउंडिंग से वो डिप होना चाहिए. एंड थर्ड इज द बल्ब शुड नॉट टच विद द बेस और साइड्स ऑफ द कंटेनर इन विच द सब्सटेंस इज प्लेस्ड. इसका मतलब ये है कि जो बल्ब है वो उस कंटेनर को के बेस को या उसकी साइड्स को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट विल नॉट गिव, बिकॉज इट विल नॉट गिव द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. सो इन दिस वे we can get an accurate reading of the temperature using a laboratory thermometer. और रीडिंग कैसे लेनी है वैसे तो आपको पता चल ही गया कि वो जो एक्सपैंड होगी और कॉन्ट्रैक्शन होगी उससे, बट स्टिल आई विल अगेन एक्सप्लेन यू. When you hold the thermometer in your hand, then you can see the shining mercury or alcohol in the thermometer. And when we dip this thermometer
in the substance whose temperature is to be measured, like if we have to measure on temperature, then we will keep it in our mouth, and due to the heat of that object, the liquid in this column will rise, and the level of the scale or the reading of marking of the scale will give us the reading of the temperature. So in this way we can measure the temperature by using a laboratory thermometer. So I hope you will understood these topics. In the next video we will learn about the other thermometers, that are clinical and digital thermometers. So I hope you will cover all these topics. So thank you.